Hello everyone. So suppose we have a we are learning expressions. Okay. So the topic which we are learning is expressions, and in this topic we will learn how do we write complex mathematical terms, expressions in Python language, right? So suppose you are calculating the hypotenuse of using Pythagoras theorem, or you are calculating volume of sphere, cone, any other solid shape. Any such kind of mathematical terms are not easy to write in Python. There is a different way to solve these expressions. For example, suppose you are writing, say, x to the power 5 plus y to the power 7. Just an example, okay? But we don't have the square root symbol in the Python, or nothing in nowhere in keyboard. So how to write the square root? How to solve the x to the power 5? Because writing x into x 5 times is not a right choice. It may increase the code length and wastage of time. So to solve all these, we have a library in Python, that is called math library. So you need to import, okay, you need to import math. So this library you required mathematical okay, all mathematical expression which you want to use, for that you need to import this library. So import is a keyword here and math is a library here. So let us solve this example first. So how do we write this expression? We'll write for math dot sqrt, okay. For square root, we use sqrt function. So let us first let me write all the mathematical functions. So this is for square root. चलिए हम पहले इसी को समझते हैं, ठीक है. स्क्वायर रूट के लिए यू यूज math.sqrt. Example, suppose under root x you want to solve it. So how to solve? You will write math.sqrt x, okay. So this symbol is replaced by sqrt, आप कह सकते हैं इसको. Second, power, math.pow. Pow यानी कि power. Example, suppose you need to solve x to the power 5. I can write this expression in 5 times also. Let me clear you, okay. But writing 5 times x is, as I told you, is not correct. It's not feasible. So what we use, better way, we use math.pow. Pow function, x the base and 5 the exponent. So it will give you x raised to the power 5. Another, we know mathematically we use many times this, okay. This is absolute. You all know that कि ये function आपको absolute value return करता है x की. So for this you have a function math.fabs, okay. fabs और आप लिखोगे x.
तो मैंने एग्जाम्पल और एक्सप्रेशन एक साथ दे दिया। फोर्थ है, देखिए बहुत इजी से फंक्शंस हैं, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोर एवर देयर फंक्शन नेम इज सेम। सपोज आप साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, से साइन 30 degree, okay, how to solve it? So you will write simply math dot sine 30, that's all, or cos 30, sec 30, any other value, suppose say cosec 30, so it will give you the math dot cosec 30, 30, 40 or 90, 30, 60, 90, 45, जो भी आप मैथमेटिकल वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, दैट यू कैन यूज़ हियर यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट वी हैव very important and required at many places in programming, that is called SEIL, SEIL. There are two functions basically, मैं आपको एक ही साथ समझाऊंगा, SEIL and floor. तो SEIL and floor क्या है? SEIL is the maximum possible value and floor is a minimum possible value. तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें, सील मैंने छत होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, छत हमसे ऊंची होती है तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। फ्लोर इज द लोएस्ट प्लेन वेयर वी स्टैंड, राइट, सो दैट्स लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, आप ये कह सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है, चलिए पहले सील और फ्लोर को हम समझते हैं। अगर मैं लिखूं सील मैथ डॉट सील से 1.7, 0, 5, any number suppose, okay, it does not matter what is after decimal. If there is even a single digit other than 0 after decimal, SEIL will give you the maximum possible value, it's 2.0, okay. And if it is floor, I'll take the same digit. Suppose अगर इसी में फ्लोर है तो ये देगा 1.0, ठीक है। तो सील द मिनिमम वैल्यू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल प्लेस, इसमें राउंड का फंक्शन नहीं चलता। आप सील और फ्लोर टॉप पॉसिबल वैल्यू एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू को हम यूज करते हैं। एंड देयर इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, आप पढ़ोगे मैथ्स में when you will go to the class 12 series and functions में, there is an exponential function e, suppose e to the power x। अब e की पावर x ये नहीं है, जैसा मैंने बोला, जब आप मैथ्स में सीरीज एंड फंक्शंस पढ़ोगे, फिलहाल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब इसका यूज़ आएगा। सो इन मैथमेटिकली वी से एक्सपोनेंशियल x, here we write math dot exp, okay, math dot exp and then x। याद रखिएगा इसके लिए पाव का यूज नहीं करना है। इन केस अगर यहाँ पे इन केस ऑफ पाव आपके पास कोई फंक्शन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, से x रेज टू द पावर y, तो यहाँ पर आप मैथ डॉट पाव x, y ले सकते हैं। Is it, this is correct, okay, this is correct in the case of पाव, but यहाँ पे मैथ डॉट पाव e to the power x नहीं लिख सकते, because e is symbolized for the exponential function, so you will use exp for that, okay। तो चलिए ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस और भी बहुत सारे होते हैं बेटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब आता है देन वी हैव डिफरेंट, बट इनिशियल स्टेज में अभी हम इनको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं, ओके। तो इन द बिगिनिंग में हमने एक एक्सप्रेशन लिया था x to the power 5 plus y to the power 7। अगर इसे हमें पाइथन में लिखना हो तो हाउ डू वी राइट, सी
the very first square root. So we'll write math dot sqrt, then math dot pow x comma 5 plus, अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैथ डॉट पाव y comma 7. ओके, एक्सप्रेशन वही है, सॉल्यूशन वही है, तरीका वही है, बस हमको ये सीखना है कि इस एक्सप्रेशन को हम पाइथन लैंग्वेज में कैसे. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. से इफ आई एम राइटिंग say a formula pi r square h. Now अब बात आती है कि पाई सिंबल तो है ही नहीं in keyboard, so how do we solve it? So in case of such expressions, we use pi is a constant, so we use its value directly. So we can write directly 3.14 or 22 upon 7 into math dot pow into h. ठीक है, और लाइक ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, 22 इंटू आर इंटू आर. आप स्क्वायर को 2 टाइम आर इंटू आर भी लिख सकते हैं, इंटू एच बाई 7. दिस इज ऑल्सो द राइट वे, वी कैन डू इट. फॉर पावर 2 और 3 वी कैन यूज 3 टाइम और ट्वाइस द मल्टीप्लीकेशन आर, but for the higher power you must use the power function. ठीक है, एक और एक्सप्रेशन अगर हम लें, से e to the power 2 plus y. अब देखिए कई सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पर मिक्स हो गए. हमारे को एब्सोल्यूट भी दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है और सिंपल वेरिएबल y दिख रहा है. So how do we write this? So we'll write math dot abs, okay, math dot abs. Because very first is the whole absolute, then math dot exp 2, okay, plus y. Y is simple variable, so this is how we write the expression. Complex, this was little complex, but it's just matter of practice. अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा. चलिए एक और एक्सप्रेशन हम लेते हैं. सपोज करिए y प्लस एक्स अपॉन के प्लस जेड टू दी पावर 4. मैंने ऐसे ही एक रैंडम एक्सप्रेशन ले लिया, बहुत ही सिंपल है इसको लिखना. लेट्स राइट. सो y, देखिए 2 टर्म है y और एक टर्म ये है, 2 टर्म हमारे पास है. सो विल राइट y प्लस x. एक मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं इसमें, अपॉन सिंबल, यानी कि यू आर डिवाइडिंग x बाय दिस टर्म, सो यू विल यूज फॉरवर्ड स्लैश. देन यू विल राइट मैथ डॉट पाव, ओके, because this is whole power of k plus z, k plus z comma 4. Okay, not so difficult, I hope. Yeah. So इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमारे प्रोग्राम्स में कई जगह पे आप लोग यूज़ करोगे. I hope this will help you. Moving to the another segment of the expression solving, there is a term comes कि कैसे हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन इनमें होता है. How the expression evaluate? Suppose expression, the term which we are learning is expression evaluation. ठीक है, अब सपोज करिए अगर हमारे पास x इक्वल 5 है और y इक्वल 7.5 है, और जब हम ऐड करते हैं x प्लस वाई, देखिए पाइथन में कोई भी डेटा टाइप
हमको डिफाइन नहीं करना होता है। बाई डिफॉल्ट देखिए दिस x इज इंटीजर वैल्यू एंड ऑब्वियसली y इज अ फ्लोट वैल्यू, क्योंकि डेसिमल प्लेस क्रिएट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट रीड करेगा और x को इंटीजर रीड करेगा। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ z, व्हाट विल बी द फाइनल डेटा टाइप ऑफ z? So in this case, when you are adding, I'll solve it for you, 5 plus 7.5 which will give you 12.5। तो देखिए फाइनली मेरा आंसर जो आता है वो आ रहा है 12.5। ओके, सो 12.5 इज अ फ्लोटिंग नंबर, तो ये अपने आप फ्लोट हो गया, यानी कि डेटा टाइप अगर ये चाहता इंटीजर के साथ फ्लोट ऐड करता और 12 ही आंसर देता, 0.5 नहीं देता, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा बिकॉज दिस लीड्स टू द इंफॉर्मेशन लॉस। अगर मैं खाली 12 आंसर दूंगा तो 0.5 का जो डेटा हमारा है वो लॉस होएगा। सो इन दिस केस पाइथन परफॉर्म इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब जिसको पाइथन ने खुद ही सॉल्व किया, हमने नहीं किया। तो हुआ क्या, z इक्वल एक वैल्यू हुई इंटीजर ऐड, एक हुई फ्लोट ऐड। तो जब आपका फाइनल आंसर आएगा दोनों को ऐड करके यू विल गेट अ फ्लोट वैल्यू। तो ये काम हमने नहीं किया, ये अपने आप हुआ। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, यू मस्ट रिमेंबर, नोट करिएगा इस टर्म को, हम इसको टाइप प्रमोशन भी कहते हैं। ओके, और टाइप प्रमोशन क्योंकि प्रमोट हो गया इंटीजर डेटा टाइप फ्लोट में, तो z का जो फाइनली डेटा टाइप आया वो अब फ्लोट आया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जो हमें किसी भी एक्सप्रेशन में ध्यान रखनी है। एक आएगा टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट, ये हमने पढ़ा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज फॉर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। We have explicit conversion, ठीक है। सो इन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखिए टर्म इंडिकेट कर रही है, एक्सप्लिसिट मीन फोर्सफुल, हम इसे टाइप कास्टिंग भी कहेंगे यहाँ पे, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में क्या है कि वी वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एन ऑपरेंड फोर्सफुली। ठीक है, हम इसे फोर्सफुल कन्वर्जन भी कह सकते हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन अभी पिछले पेज में यूज किया, x प्लस वाई। x आपका इंटीजर है और y आपका फ्लोट है। ठीक है, एंड वी हैव सीन कि हमारा फाइनल आंसर जो आया वो फ्लोट आया ऑटोमेटिकली, विच वी हैवंट डन एनीथिंग। लेकिन अगर इसी वैल्यू में हम z इक्वल्स टू 5 प्लस 7.5 ऐड करते हैं, आपका आंसर आया था 12.5। ठीक है, विच वॉज फ्लोट। लेकिन अगर इस वैल्यू को मैं बाहर से इंटीजर लिख दूं, getting, so your output will be considered as 12 only। यानी कि अगर मैं इंटीजर z कर दूं इसे, तो फोर्सफुली व्हाट आई हैव डन कि मैंने डेसिमल पार्ट, बिकॉज इंटीजर डज नॉट रीड द डेसिमल पार्ट, तो हमने फोर्सफुली उस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो आपको आंसर केवल 12 देगा। नाउ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम, कहाँ पर क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, इट डिपेंड, बट both the options are available. If you do not interfere, Python automatically convert
एंड इफ़ यू डू नॉट वांट कि डेसिमल वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, आई वांट इंटीजर ओनली, आई कैन यूज इंटीजर आइदर फ्लोट. अनदर एग्जांपल लेते हैं. सपोज x इक्वल 3 है, y इक्वल 5 है, हमने लिखा z इक्वल एक्स प्लस वाई. ऑब्वियसली जो हमारा आंसर आएगा वो 8 आएगा, जो कि एक प्योर इंटीजर है. ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट x प्लस वाई या फ्लोट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8.0 आ जाएगा. बिकॉज इस पूरी वैल्यू को मैंने फ्लोट में फोर्सफुली कन्वर्ज कर दिया है. So if there is no decimal place, so it will put 0.0 and then it will be a float value. Okay. तो दो चीज़ें आज हमने समझी हैं आज के वीडियो में. एक हमने स्टार्ट किया था एक्सप्रेशन से. हमने बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इसमें अभी देखे हैं. ये एंड नहीं है. देयर आर सो मैनी मैथमेटिकल फंक्शंस जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है. इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखने से आपको ये मामला क्लियर हो जाएगा. ये कुछ एक्सप्रेशंस थे जिनकी हमने आज प्रैक्टिस करी है. ओके. उसके बाद हमने एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन पढ़ा था, इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो ऑटोमेटिक होता है. एंड द लास्ट टॉपिक विच वी लर्न वाज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, फोर्सफुल कन्वर्जन, जिसमें हम किसी भी डेटा टाइप को एक्सटर्नली डिफाइन करके उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल यू. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग.